On this bright and beautiful morning, I welcome you all to the Lord's Day service. God has blessed us with a new day, with a new Lord's Day service. So let's begin today's service with a prayer. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise you for this wonderful time in our lives. Thank you, Lord, for you have helped us to reach here on time to glorify your name in our lives. Thank you for your grace and mercy. Thank you for your everlasting love on our lives. Thank you for your abounding mercies upon us day by day. You renew our strength, so we thank and praise you. This moment I give charge over each and everyone present here, each and everyone watching us into thy hands. I cover each and everyone with the blood of Jesus. Each and every instrument, each and every connection, each and every mobile, everything I give charge over to you. I cover with the blood of Jesus. I pray that you take charge over each and every matter and deed. Lead us and guide us according to your Holy Spirit so as to glorify your name in our lives. Committing each and everything into thy hands, giving you all the glory, honor, and praise, for thou art worthy, there is none like you. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. David says, all the days of my life, I would like to live in the presence of the Lord. And we also read in New Testament, Paul says, praise ye the Lord always. It's time to thank the Lord and it's time to praise the Lord. We need to praise the Lord as the Lord has given us the breath. And it says, let everything that has breath praise the Lord. Psalm 156. So let's prepare our hearts to praise and exalt his holy name. Now I commit the future time, praise and worship time, into the Lord's hands. And also I ask each and every one of us, let's prepare our hearts to praise and thank him. I now request Sister Esther and Kshitij to lead us in praise and worship. Thank you. Heavenly Father, I thank you, Lord. I thank you for this wonderful day in our lives, Lord. I thank you for your beautiful presence, Lord, in our lives, Lord. That you have been keeping us safe, Lord. You have been protecting us, Father. I give you all the honor and glory, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for all the blessings you have given us, Father. Our Heavenly Father, as we begin the service, Lord, I ask for your and your glory in our lives, O Father. Oh Lord. And let your will be done, let your name be glorified, O Father. I commit each and every one of us into your hands. Let your Holy Spirit lead us and guide us, O Lord. I pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. We welcome you, Holy Spirit. We ask for your mighty and wonderful works in our lives. We ask for your fire. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से
Jesus. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है अमन, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है अमन। मैं जो पहले मरता था तूने डाले मुझे जो, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। Jesus, glory Lord Jesus. Thank you. Yes, Jesus. we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We give you all the honor and all the glory, Father. Heavenly Father, we thank you, Lord, for in the times of trouble, O Lord, Yes, you have provided us, O Lord, the strength, O Father. yes, The strength which we have in you, O Father, yes, Jesus. is greatest than anything in the world, O Lord. Yes, God. We thank you, Lord. Yes, yes, You have helped us, O Lord, not to stumble, O Lord, yes, to stay strong, O Lord, in you, Father. yes, Jesus. We thank you, Lord, for you are our strength, O Father. You are our rock. Jesus. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस धर्मिया, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस धर्मिया, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबात मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबात मेरा,
मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, बसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, बसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, बसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान, यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया
तेरे समान आराधना 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 हालेलुया हालेलुया वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस चंगाई देने तू आया पास वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस चंगाई देने तू आया पास कोड़ों की घाव से चंगा हुआ मैं वैद नहीं कोई तेरे समान कोड़ों की घाव से चंगा हुआ मैं वैद नहीं कोई तेरे समान आराधना 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 हालेलुया हालेलुया Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord, for your salvation. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Let us thank the one who set us free from every bondages, from every evil, from every harm. Let us thank the Lord who saved us, who brought out us from darkness, who brought us out from darkness, and shone His light in our lives, who has given us happiness. Thank you, Lord, who has given us peace. We have our joy. His name is Jesus. And He was crucified for us. He gave everything that He had for us. Oh, we thank you, Lord. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you took the fall, and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground.
took the falls and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall, and thought of me above all. धन्यवाद देते परमेश्वर बापा या सुंदरशा वेळेसाठी परमेश्वर बापा की परमेश्वर बापा या तुझ्या चरणापाशी येऊन परमेश्वर बापा तुझी स्तुती आराधना करण्याची वेळ दिलीस त्याबद्दल धन्यवाद देत आहे. पवित्र प्रभू, आज आम्ही जसं आहोत तुझ्या चरणापाशी आलो आहोत आणि परमेश्वर बापा प्रार्थना करत आहे असंच तुझ्या आत्म्यानं तू आम्हाला भर परमेश्वर बापा. तू आमच्या अंतःकरण परमेश्वर बापा भरून टाक परमेश्वर बापा. तुझ्या सामर्थ्याने परमेश्वराच्या तू आम्हाला भर परमेश्वर बापा. स्तुती करत आहे तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव आदर सन्मान देत आहे आणि प्रार्थना करत आहे प्रभू तू असंच आमच्याबरोबर राहा आणि तू आम्हाला सहाय्य कर मदत कर परमेश्वर बापा. आमच्या इथून पुढच्या प्रत्येक सेशनमध्ये तू आम्हाला सहाय्य मदत हो. इथून पुढचा वेळ आम्ही सर्व तुझ्या हातामध्ये देऊ तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव देऊन प्रार्थना येशूच्या नावामध्ये करत आहे म्हणून तू आमेन. Let's give a clap offering to the Lord for the wonderful praise and worship. Yes, thank you. Now it's time to read the psalm. And today's psalm is Psalm 2nd Psalm. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord, against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs, and the Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son today. I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces, like a potter's vessel. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. I thank the Lord for this wonderful psalm, 2nd Psalm. But I just want to tell you one thing, that is verse 8. Ask of me, and I will give the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. Let's ask of the Lord. Let's ask him. But let's not ask him for the material things. As we are in the end of this year, let's make a target to gain more souls in his kingdom. And let's ask him to give us more lost souls to bring to his kingdom, so that we may have possession not only on earth but in the heaven. As we end this year, let's make a target. Let's plan for the coming 2022. It's God's grace and mercy that we are alive. And one more verse I would like to tell you, divert your attention. That is verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. It's a wonderful verse. It says, serve the Lord with fear. What is the fear we need to have? We need to have one fear. That is, the Lord is watching us. He is keeping account of all our deeds.
He is the one who's going to reward us. So let's serve the Lord with the fear that He is present with us. He is an omnipresent, omnipotent, and omnisensible God. He knows our deeds are going out and are coming in. So let's serve Him with all fear. And let's rejoice with trembling. That is, let's rejoice in His presence, not in the worldly things, but let us rejoice in the Lord. Because Paul again says, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord. Let's rejoice in the Lord with all trembling. I thank the Lord for this wonderful opportunity to read this psalm. Thank you. It's time to sow. Without sowing, we can never reap. It's time to sow in the kingdom of God. The seed is two ways to sow the seed. One is sowing the word of God as a seed in the lives of the people. And one is sowing the seed as money or talent in the kingdom of God. So it's time to sow, to give our tithe and offerings. So let's give with a cheerful heart. Let's not give with a burdened heart. Oh, why we need to give? What is there is a need to give? Don't give with a burdened heart. If you give with a cheerful heart, it is said that the Lord loves the cheerful giver. And so now, let's give with a cheerful heart. The details will be displayed on the screen for those who are watching us. And those who are sitting here will be sowing in the kingdom of God here itself. Now, let's go to the announcements. Complete week, we have scheduled different things. Monday, we have a Bible study. Tuesday, again, we have a Bible study. Wednesday, we have women's fellowship. And Thursday, we have a special Bible study again. Now, Monday to Thursday, it's 7 to 8 p.m. and it's on Zoom. I request you all to kindly join us and learn the new things, what the new revelations, what the Bible is teaching us. Just not reading, but we need to understand it, we need to study the Bible. We need to meditate on it. So I request you all to kindly join us from Monday to Thursday, 7 p.m. Sunday, we have at 10 a.m. This is the weekly schedule for till the month of December 2021. Now, we are going to go into the Word of God. As I told you, sowing is also, the seed is also the Word of God. And now we are going to keep away all our thoughts and deeds, all our plans and purposes, all our things aside, and listen carefully, attentively to the Word of God. It's time to listen to the Word of God. So I now commit the future time into Pastor's hands. I now request Pastor to kindly come forward and take the future time and lead us in the Word of God. So let's clap and welcome him. Come, Pastor, please. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे आज के इस समय के लिए। और जैसे प्रभु ने हमको फिर से एक नया सप्ताह दिया है और इस सप्ताह के शुरुआत के दिन में, पहले दिन में हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि हम अभी जो पर्व मनाने जा रहे हैं वो पर्व हर एक मसीह लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है। और इस बड़े दिन के लिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया। अगर इतिहास के तौर पर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह इस दिन आया या दूसरे दिन आया
हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतिहास की तारीख अलग है और हम लोगों ने जो तय की हुई तारीख अलग है। और सालों से हम इसी रीति रिवाज को हम आगे लेके जा रहे हैं। सच पता होने के बावजूद भी हम सच को एक साइड करके हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो संदेश जो है, इसके ऊपर मेरा संदेश नहीं है, लेकिन मैं जो संदेश आज तक देते आया हूं इस क्रिसमस के सीजन में, मेरा एक ही मकसद है कि लोगों के पास सच्चाई आ जाए, लोग सच्चाई को समझ ले और सच्चाई सुन के वो सारी गलत बातों से बाहर आ जाए। यही मेरी कोशिश है। तो आइए हम कुछ बातें, हम पहले बड़े दिन की हम यहाँ पे करेंगे। हम जानते कि बड़े दिन यानी क्रिसमस, और इस क्रिसमस के पहले दिन यानी पहला जो क्रिसमस था जहाँ पे यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसका जन्म हुआ, उसके को जन्मने के पहले कुछ बातें यहाँ पे हो गई थी और उससे हम कुछ बातों को हम देखेंगे, सोचेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, ताकि जो हम तैयारी कर रहे हैं कि क्रिसमस की, कि हम क्रिसमस में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत सारी बातों को हम तैयारी करके रखें, तो हम उस सही रीति से हम कर सके और प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा हम कर सके। तो आइए इस समय हम पवित्र शास्त्र से लूका की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 3 वचन से हम आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ बातों से, इस वचन से हम सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे। 3 वचन यहाँ पे कहता है, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय अगस्तुस कैसर के समय में वहां पे एक आज्ञा निकली थी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सारे जगत के, केवल इस्राएल के नहीं, केवल रोम के नहीं, लेकिन सारे जगत के लोगों के नाम जो है वो लिखा जाए, या वहां पे हम कह सकते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि सेंसस जैसे काउंट किया जाता है, तो उस रीति से जनगणना जैसी की जाती है, उस रीति से उस समय में ये जनगणना करने के लिए लोगों को अपने अपने गांव जाना पड़ा था और सब लोग अपने अपने नगर को गए, अपने अपने गांव को गए अपना नाम लिखवाने। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि लोग जो है अपने गांव में अपना नाम लिखवाने गए थे, क्योंकि हम इस नगर के वासी है या ये नगर हमारा है, ये हमको वहां पे रजिस्टर करना है। आज जब हम देखते हैं कि जैसे हम हर एक जन विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो हमारा जिंदा खुदा हमको लेने के लिए वापस आने वाला है, और वो अगर वापस आने वाला है तो क्या हम उसके तैयारी में हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी अभी एक नगर को जाने वाले हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्ग में हम चले जाएंगे। और हम गीत भी गाते हैं कि हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, और ये आशा क्या है कि हम रहेंगे मसीह के संग और हमेशा उसके संग रहेंगे। आज हम जब ये गीत गाते हैं तो हम ये भी गीत हम गाते हैं कि परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, रहना नहीं है यहाँ हमेशा के लिए,
परदेसी है यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हमारा एक नगर है जिस नगर में हमें जाना है और वहां जाने के लिए हमको अभी तैयारी करनी है। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? जैसे मेरे पहले मैसेज में मैंने यही बात को मैंने बताया था कि पहला क्रिसमस तो हो गया है, यीशु मसीह तो आ गया दुनिया में, 2000 साल हो गए, अभी फिर से यीशु मसीह आने वाला है। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? इस क्रिसमस के मौके पे हमको तैयारी करना है यीशु मसीह की, यीशु मसीह आने की तैयारी करनी है। अगर वो तैयारी करनी तो हमको कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहां के जो लोग थे, सब लोग उन्होंने अपने अपने नगर में जाके अपना नाम लिखवाया। क्या आज हम उस नगर में जाने वाले हैं जिसका नाम है सियोन, और उस सियोन नगर में हम जाने के लिए क्या हमने हमारा नाम वहां पे दर्ज किया है क्या? क्या जाने के लिए हम तैयार है क्या? हमने वहां जाने की तैयारी की है क्या? क्योंकि हमको ये, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम क्रिसमस किस रीति से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस रीति से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारा नाम उस स्वर्ग के नगर में दर्ज हुआ है क्या? अगर हमारा नाम वहां पे दर्ज नहीं है तो हमको उस नाम को दर्ज करना चाहिए। और ये पहली सीख जो है हमको इस वचन में हमको साफ रीति से दिखाई देती है। तो अभी हमको ये की बात के ऊपर हमको ध्यान रखना है कि वो कि हमको हमारा नाम उस स्वर्ग में हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि हम वहां के रहने वाले हैं। और अगर हम वहां के रहने वाले हैं और हमारा नाम वहां पे अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा नाम उस जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा और हम वहां के रहवासी नहीं बनेंगे, बल्कि हमको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो पहली बार हम इस क्रिसमस के मौके पे हम अपने नामों को दर्ज करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। चौथा वचन हम यहाँ पे देखेंगे, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, यूसुफ ये भी अपने गांव वो चला गया। यूसुफ ने अपना गांव जो है वो, उससे मालूम था कि मेरा गांव कौन सा है, और वो गांव वहां जाने के लिए उसने अपनी पूरी तैयारी की। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका गांव कौन सा था। यहाँ पे हम देखते कि उसका जो गांव जो था, यहाँ पे लिखा गया है कि वो दाऊद के घराने का था। इसलिए गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वो नासरत नगर से निकल के यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम गया। उसने जहां वो अभी रह रहा है उस गांव को उसने छोड़ा और अपना जो ओरिजिनल जो गांव जो है, जो सिटी है, वहां पे वो जाने के लिए वो तैयार हो गए। आज हम कहां पे रह रहे हैं? हम आज इस दुनिया में रह रहे हैं। हम इस दुनिया में जैसे जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है। अच्छी बातें कम, लेकिन बुरी बातें बहुत हो रही है। और इन सारी बातों को देख के हम एक ही बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह का समय बहुत ही जल्द आ गया है। जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसके लिए यहाँ पे हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे
हमको अगर हमारा नाम वहां पे दर्ज अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात सबसे कि हमको जहां पे हम रहते हैं उस नगर को हमको छोड़ना पड़ेगा और जो हमारा मूल नगर जो है वहां पे हमको जाना पड़ेगा। तो हम कहां पे रह रहे? तो अब हम इस दुनिया में रह रहे, और जैसे हम इस दुनिया में रह रहे, इस जगत में रह रहे, तो इस जगत में क्या है? प्रभु का वचन हमको कहता है कि यूहन्ना की पत्री, पहले पत्री में, कि वहां पे कहा गया है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और संसार का घमंड, ये जो है ये बातें इस दुनिया में है। जब हम इन सारी बातों को जब देखते हैं तो हमको एक बात को याद रखना कि क्या हम इन तीन चीजों को पकड़ के चल रहे हैं क्या? आज जब हम ये क्रिसमस हम मना रहे हैं, इस क्रिसमस में ये तीन बातें हैं क्या? उसमें शरीर की अभिलाषा है, उसमें आंखों की अभिलाषा है, उसमें संसार का घमंड है। ये हमको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीनों बातें अगर हमारे क्रिसमस में रहेंगे तो हो सकता है कि हम दुनिया के तौर तरीके से हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो कि जैसे क्रिसमस का सीजन शुरू होता है तो हम पहली देखते हैं बात कि आंखों की अभिलाषा। हम देखना शुरू करते हैं, क्या देखना शुरू करते हैं कि अरे मेरे पड़ोसी ने कैसे डेकोरेशन किया, अपने घर को कैसे सजाए, वो हम देखते हैं। हम हमारे दोस्तों के, हमारे रिश्तेदारों के, सबके घरों का हम देखते कि क्या क्या चल रहा है। और फिर जैसे हम उन चीजों को देखते हैं और देखते ही हमारे अंदर एक अभिलाषा तैयार होती है, और वो अभिलाषा किस चीज की रहती है? वो रहता है कि मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में भी ऐसा होना चाहिए। और फिर हम वहां पे क्या करना शुरू करते हैं? हम उस चीजों को हम लाना शुरू करते हैं जो आंखों की अभिलाषा से हमको प्राप्त हो गया है। हम उसी रीति से हमारे घर में डेकोरेशन करना शुरू करते हैं। डेकोरेशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास अगर वो बात नहीं है, तो यहां वहां से पैसा लेके, कर्जा लेके अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो ये गलत बात है। यहां पे हम देखते कि हमारी जो आंखों की अभिलाषा जो है हमको गलत रास्ते पे लेके जाती है, हमको गलत चीजें बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमको इसके ऊपर विजय पाना है। दूसरी बात है कि शरीर की अभिलाषा। हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर के लिए हम अच्छे अच्छे कपड़े देखना शुरू करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाना शुरू करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो या ना हो वो हम लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो कि जब हम क्रिसमस कर रहे हैं तो इस क्रिसमस में ये बात आ रही है क्या? अगर आ रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें से बाहर आना पड़ेगा, इसमें से बाहर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो कि जैसे क्रिसमस के सीजन में हम देखते कि वहाँ पे जो मिठाइयाँ जो है वो बनाई जाती है, और जब मिठाइयाँ बनाई जाती है तो वहाँ भी हमारा कंपटीशन रहता है कि इसके पास ये है तो मैं ये करूँगा, उसके पास वो है तो मैं ये करूँगा, उससे अच्छा मैं करूँगा, मेरी मिठाई जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें हम करने की कोशिश करते हैं।
तो ये बात सही है क्या? ठीक है कि हम मिठाइयां हम बना रहे हैं, हम मिठाइयां बना रहे हैं, हम अच्छा खाना बना रहे, बिरयानी बना रहे, सब कुछ हम बना रहे, लेकिन क्या हम ये सारी चीजें हम उन गरीब लोगों को दे रहे हैं क्या जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहे? हम किसको दे रहे? जिसने हमको उनके त्योहारों में मिठाइयां दी, हम उनको मिठाइयां हम दे रहे। जिसने हमको दिया उसको हम दे रहे। यीशु मसीह कहता है कि जो तुझे तेरे ऊपर प्यार करता है उसके ऊपर तू प्यार करेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे तू। तुझे अपने शत्रु के ऊपर भी प्यार करना है। क्या हम इस क्रिसमस के मौके पे जो भी हम बनाते हैं करते हैं, क्या हम हमारे शत्रु को ये सारी चीजें हम देते हैं क्या? हम हमारे शत्रु को ये बातें या ये स्वीट्स या खाना हम देते हैं क्या? हम गरीब लोगों को, भूखे लोगों को हम ये खाना देते हैं क्या? अगर हम हमारे पहचान वालों को, हमारे ऊपर प्यार करने वालों को अगर हम ये देते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, संसार का घमंड। हमारे अंदर एक प्राइड आ जाता है कि उस दिन हमारा फेस्टिवल है और हमारा त्योहार जो है हमको बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जोरों शोरों से हमको मनाना है। हमको लोगों को दिखाना है कि हमारा धर्म कितना सही है, हम लोग कितने सही है। और इन बातों में हमारे अंदर एक घमंड आता है और उस घमंड में हम चलना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि चर्चेस फुल हो जाते हैं। जो लोग सालों से चर्च नहीं आते हैं वो लोग भी वहां पे चर्च आना शुरू करते हैं। दूसरी बात, चर्च आते हैं और फिर वहां पे उनकी जो धार्मिकता जो है वो जग जाती है और फिर वो वहां पे आएंगे, वहां पे बैठेंगे, लेकिन उनका ध्यान न वचन के ऊपर रहेगा न उनका ध्यान चर्च में रहेगा, लेकिन उनका ध्यान आस पड़ोसी में, अपने दोस्तों में, वही चीज उनके ध्यान में रहेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस क्रिसमस में क्या हम लोग उस नगर को छोड़ने के लिए तैयार है क्या जहां पे आपका नाम नहीं है? आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसका जो हमारा आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी कार्ड जो है हमने बनवाया है, हमारा रेशन कार्ड है, हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारी सारी चीजें हमारे पास है, हमारा वोटर आईडी है और ये सब बातें हमको बता रही है कि हम इस दुनिया के, हम इस देश के, इस नगर के हम वासी हैं। लेकिन अभी समय आ गया है कि अभी हमको इन बातों को हमको छोड़ना है और ये छोड़ के हमको क्या करना है? हमको आगे जाना है। कहां जाना है? सियोन देश जाना है। हमको वहां हमारे नगर में जाना है जिस नगर में हमारा राजा रहता है, जहां पे हमारा नाम वहां पे लिखा गया है, जहां पे हमारा नाम है, हमको वहां पे हमको जाना है और वहां पे जाके हमारा नाम वहां पे रजिस्टर करना है। आज हम देखते कि यूसुफ ने यहां पे एक चीज को किया, अपने नगर को उसने छोड़ दिया और वो बैतलहम में वो गया जहां का वो मूल निवासी था। आप लोग और हम लोग जो है, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। वचन कहता है कि हमारा जो नागरिकत्व जो है वो स्वर्ग में है। हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, लेकिन हमारा जो रहना जो है या हमारा जो नागरिकत्व जो है वो स्वर्ग में है। क्या हम उसके लिए तैयार है क्या?
हमने वो कंफर्म किया है कि हम वहां के नागरिक हैं? और अगर है तो क्या हमने हमारा नाम दर्ज करने की कोशिश की है? हमको वहां पे हमारा नाम दर्ज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। आगे हम वचन को देखेंगे। अपनी मंगेतर मिरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। यहां पे वो जो है वो उसने क्या किया है, उसने एक नगर को, नसरत नगर को छोड़ के यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया है कि अपनी मंगेतर मिरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसने केवल खुद का नाम लिखवाने के बारे में उसने नहीं सोचा, तो उसने क्या किया, उसने अपने नाम के साथ साथ अपने पत्नी का भी, मंगेतर का भी नाम लिखना उसने सही समझा। आज यहां पे वचन हमको यही बात की शिक्षा दे रहा है कि हमको हमारा जो नाम जो है वो स्वर्ग में लिखवाना है, लेकिन वहां पे लिखवाते वक्त केवल हमारा नहीं है, लेकिन हमारे घर के हर एक सदस्य का नाम वहां पे लिखना जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पे हम देखते कि मरियम जो है वो उसकी मंगेतर थी, उसकी पूरी पत्नी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि मुझे उसकी जिम्मेदारी उठाना है। अभी यहां पे हम कुछ बातों को थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। उसकी मंगनी मरियम के साथ हो गई है, शादी नहीं हो गई है। अलग अलग बाइबल अलग अलग रीति से ट्रांसलेशन करके वहां पे मरियम को उसकी पत्नी बता दिया है, लेकिन मैंने जब ओरिजिनल लैंग्वेज में मैंने देखा तो वहां पे, हिब्रू लैंग्वेज में देखा तो वहां पे एंगेज्ड लिखा है, वहां पे मैरिड नहीं लिखा है। लेकिन कुछ इंग्लिश बाइबल में मैरिड लिखा है, लेकिन वो मैरिड नहीं था, उसके साथ उसकी शादी नहीं हो गई थी, लेकिन उसके साथ मंगनी हो गई थी। अभी यहां पे हमको थोड़ा ये देखना है या सोचना है क्या, तो कि मरियम को अगर उसकी शादी नहीं हो गई है तो वो लेके क्यों गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी मंगनी भी हो जाए तो हम शादी के बगैर हम किसी भी लड़की को हम इधर उधर लेके जा नहीं सकते हैं। अभी आज की बात तो हम देखते हैं कि ये सारी बातें तो आम हो गई है कि एंगेजमेंट के पहले ही हम लेके घूमते हैं, एंगेजमेंट के बाद भी घूमते हैं, और ये जो चीजें जो है ये सरेआम हो गई है। लेकिन उस समय में ये बात को बढ़ावा नहीं था, या नहीं, वो बात नहीं हो सकती थी। लेकिन वो मरियम को वो अपने साथ क्यों लेके गया? क्या रीजन था? अगर हम मत्ती के पहले अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो हमको मालूम है कि यूसुफ को जब पता चला कि मरियम जो है वो गर्भवती है, तो उसने उसको छोड़ने के लिए उसने मन किया। और जब उसने मन किया, उसी रात स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया, और स्वर्गदूत ने उसको कहा कि ये जो गर्भ जो है ये पवित्र आत्मा की तरफ से है, इसलिए तू हिचकिचा मत, तू उसको स्वीकार कर। और जब उसको समझाया तब उसने उसी समय, वचन ऐसे कहता है कि उसी समय उसने उसका स्वीकार किया। यानी उसका स्वीकार किया, यानी उसने क्या किया होगा? उसने बाकी के सारे लोगों को भी बताया होगा, क्योंकि अगर उसके समझ में आया था कि वो गर्भवती है तो वहां के लोगों के समझ में आ गया होगा।
यूसुफ मरिया को लेके क्यों गया? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि उस समय में, उस ज़माने में कि जो कुंवारी लड़की जो होती है वो अगर गर्भवती पाई जाती है तो मूसा के नियम के अनुसार उसको पथराव किया जाता है। और जब यूसुफ के समझ में आया कि मरियम जो है वो गर्भवती है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के समझ में भी आना शुरू हो गया होगा कि वो गर्भवती है। हो सकता है कि लोगों ने प्लान भी बनाया होगा कि उसको पथराव करने का, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जो स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के साथ उसने बात की, और बात करने के बाद फिर उसने उसको स्वीकारा, उसकी जिम्मेदारी उसने ली, और वो जिम्मेदारी लेके उसको लेके अपने साथ लेके जब तक शादी नहीं होती है तब तक, और जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक पूरी रीति से, पवित्रता से उसकी जिम्मेदारी उसने पूरी की। आज जब हम इन बातों को जब हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है, हमारे जीवन को उसको सौंप दिया है, हमारे नाम उस स्वर्ग में हमने लिखे हैं, तो केवल हमारे बारे में हमको नहीं सोचना है, लेकिन हमारे साथ जो भी हमारे रिश्तेदार जो है, हमारे परिवार के लोग जो है, उनके बारे में भी हमको सोचना है, उनकी जिम्मेदारी हमको लेना है। और यही चीज हमको इस वचन से हमको सिखा रही है कि इन अंतिम क्षणों में हमको हमारे परिवार के लोगों के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। हमको उनको उद्धार में लाना जरूरी है, उनके नाम स्वर्ग के स्थानों में लिखना जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे ये जो वचन जो है हमको यही सिखा रहा है कि उसने अपने मंगेतर मरियम को लेके वो नाम लिखवाने वो वहां पे गया था। आज सचमुच हम इस बात के ऊपर हम सोचेंगे और हमको क्या करना है ये हम तय करेंगे। आगे हम पढ़ते कि उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र यानी मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। उनके वहां रहते हुए उनके जन्ने के दिन पूरे हुए और अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लिपटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पे हम देखते कि पहली बात कि उसके जो दिन थे वो पूरे हो गए, जन्ने के जो दिन थे वो वहां पे उसके पूरे हो गए। जो भी हमको काम करना है वो पूरा काम करना है, कोई भी काम हमको अधूरा नहीं रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मरिया जो है, जैसे वो गर्भवती हो गई तो वहां पे हम देखते कि उसके जो महीने जो थे, दिन जो थे वो पूरे हो गए। और यीशु मसीह जो है इस दुनिया में तब आया जब उसके दिन पूरे हो गए। वो बीच में नहीं आया, या पहला नहीं आया, या आखिर में नहीं आया, लेकिन सही समय पे यीशु मसीह आया, क्योंकि वचन भी कहता है कि वो सही समय पे इस दुनिया में आया है। आज बहुत बार ऐसे हमको लगता है कि यीशु मसीह बहुत देर से आ गया। नहीं, यीशु मसीह सही समय पे आ गया। आज अगर हम देखेंगे कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि यीशु मसीह के पहले जितने भी प्रभु के दास लोग थे
प्रभु के लोग थे, वो तरस रहे थे यीशु मसीह के आगमन के लिए, यीशु मसीह के बातों को देखने के लिए, सुनने के लिए वो तरस रहे थे, लेकिन वो देख नहीं सके। लेकिन हम यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो गया, तो यहाँ पे एक चीज हो गई कि जब दिन पूरे हो गए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। सही समय पे, सही समय पे वो हमारे जीवन में आ गया। उसने हमारे जीवन को उसने बदला। इतना ही नहीं, तो यहाँ पे हम देखते कि यहाँ क्या हो गया है कि वह अपना पहलौटा पुत्रा जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में उसको रख दिया। उसने उसको चरनी में रखा। यीशु मसीह खुदा होते हुए भी उसने स्वर्ग छोड़ा और उसने चरनी में जन्म लिया। वो स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया और इस ऐसे जगह पे वो जन्मा कि जहाँ पे एक आम से भी आम आदमी रहता है, रहता नहीं है, ऐसे जगह पे वो जन्मा। यानी उसने खुद को इतना दीन बनाया कि उसने खुद को खुदा होते हुए भी उसने मनुष्य बन के उसने इस दुनिया में आया। हम यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्यों, यहाँ पे वचन आगे ऐसे कहता है कि वो चरनी में उसे रखा। क्यों रखा उसको? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह न थी। उनको कहाँ भी जगह नहीं मिली। हम जानते कि जैसे वहां पे जनगणना हो रही थी, लोग वहां पे बहुत से लोग आए थे। वहां की जो धर्मशाला जो थी, होटल्स थे, जो भी है, सब घर जो है सब कुछ भर गया था। लोगों को रहने के लिए ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे वो जो गांव जो है उतना बड़ा नहीं होगा, या उतने परिवार नहीं होंगे, उतने घर नहीं होंगे। और अचानक रीति से ये सारी चीजें होने के बाद हम देखते हैं कि जब यूसुफ वहां पे आया तो उनके रहने के लिए उनको कुछ भी जगह नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में कि जब वो पुत्र को अभी जन्मने जा रही है। देखो कि आज जब भी मैं इस वचन के बारे में मैं सोचता हूं या बताता हूं, तो ये बात तो साफ है कि देखो कि आज भी यीशु मसीह को हमारे जीवन में जगह नहीं है। हमारे अंदर हम देखते हैं कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें इतनी भरी हुई है कि हमको यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रही है। आज इस क्रिसमस के सीजन पे हम अगर देखा जाए तो हमको पता है कि लोगों के पास सारी चीजें आ जाती है, केवल प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बचपन से, जैसे मुझे याद है कि हम किस रीति से क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। वो ऐसा समय रहता था कि सुबह पहले 24 तारीख से लेके 31 तारीख के रात और 1 तारीख के सुबह तक पूरा जो प्रोग्राम जो था एकदम भरा पड़ा हुआ रहता था। 24 तारीख को वहां पे बहुत सारे प्लान्स रहते थे, वहां पे सब कुछ रहता था। हम लोग जितने भी रिश्तेदार हैं, हम एक होके रात के 11 बजे प्रार्थना के लिए बैठते थे। लेकिन 11 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, लेकिन उसके पहले जो घर के जो बड़े सदस्य जो थे, जो पुरुष जो थे, वो उस दिन शराब पीते थे। और उसके बाद वो प्रार्थना के लिए बैठते थे। वो साल भर में नहीं शराब पिएंगे, लेकिन उस दिन जरूर वो शराब पिएंगे। क्यों? कौन उनको बताया? कौन उनको सिखाया? क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग ये ओरिजिनली हम क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जब हमारे
बाप दादाओं ने जब प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया तब उनको कुछ बातें समझ में आई, वचन समझ में आया, यीशु मसीह का अनुभव उनके जीवन में आया। न उन्होंने रोटी के लिए, न नौकरी के लिए, न किसी चीज के लिए उन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुभव किया और वो अनुभव करके उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। लेकिन जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग जो क्रिसमस के पहले दिन शराब पीते थे, ये कहां से आ गया? ये कहां से सीखे? अगर हम देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि ये कहां से आ गया। तो किसी ने तो ये रिवाज निकाला होगा, और ये रिवाज कहां से आया था? ये तो भारत का रिवाज नहीं था, तो ये आया कहां से? तो ये लोगों ने जैसे वचनों का स्वीकार किया, यीशु मसीह का स्वीकार किया, वैसे जो पाश्चिमात्य जो संस्कृति है उसका भी उन्होंने स्वीकार किया, जो नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया, इसलिए वो लोग उस समय शराब पीते हैं। यानी वो शराब, यानी उनकी शराब अलग होगी, मुझे नहीं मालूम क्या पीते, लेकिन उन चीजों को हमारे लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर वो इस रीति से अब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। बल्कि आज पूरे लोगों को, पूरे इंडिया के पूरे लोगों को पता हो गया है कि ये जो मसीह लोग जो है ये क्रिसमस के समय दारू पीते हैं। इनके दारू पीना यानी वो क्रिसमस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सोच के लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो फेस्टिवल रहता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पीना पड़ता है, आप पीते हैं। और हम देखते हैं कि केवल यहाँ पे मर्द नहीं पीते, औरतें पीती है, बच्चे पीते हैं। ये सारी बातें, गलत बातें आज इस मसीहत में आ गई है। क्या ऐसी जगह पे यीशु मसीह जगह ले सकता है क्या? ऐसी जगह पे यीशु मसीह जन्म ले सकता है क्या? अगर यीशु मसीह ही नहीं है हमारे जीवन में, तो किस काम का वो क्रिसमस है? क्या क्रिसमस का मतलब हमारे जीवन में पूरा हो रहा है? यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमको पापों से उद्धार मिले, लेकिन हम अगर उस क्रिसमस पे ही अगर हम पाप करते रहेंगे, अगर गलत काम करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह का जो मकसद था कि क्रिसमस के दिन में वो जन्मा, वो मकसद वहां पे पूरा हो गया। अगर आज हमको थोड़ा भी उसके बारे में लगता है कि हमको बदलना है, तो हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। और जैसे यहां पे वचन कहता है कि उनको जगह नहीं मिली, सराय में जगह नहीं मिली। उस समय 2000 साल पहले यीशु मसीह को जन्मने के लिए सराय में जगह नहीं मिली। आज 2000 साल के बाद हमारे जीवन में यीशु मसीह को जन्मने के लिए जगह नहीं है। कोई बात नहीं है, सराय में जगह नहीं मिली इसलिए यीशु मसीह जन्मा नहीं है, ऐसा नहीं हो गया। लेकिन यीशु जन्मा, यीशु आज भी जन्मेगा अगर आप आपके दिल में उसको जगह दो या न दो, लेकिन वो इस दुनिया में आके रहेगा, वो हर एक के दिलों में आके रहेगा, हर एक के दिल का उद्धार वो करेगा। जो उसका स्वीकार करेगा वो उसका पुत्र कहलाएगा, स्वर्गीय पिता का पुत्र कहलाएगा। जो स्वीकार नहीं करेगा वो दंड का भागी हो जाएगा। आज यहां पे वचन से हम लोगों ने जो बातें यहां पे हमने देखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्रिसमस के समय हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज इस समय हम खुद को
हम तैयार करेंगे कि क्या हमको, किस रीति का क्रिसमस हमको करना है, क्या हमको इस क्रिसमस के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर 2000 साल होने के बावजूद भी अगर हम खुद को अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो सोच लो कि हम कभी भी नहीं बदलेंगे, और जो नहीं बदलेंगे वो कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। आज ये सीजन जो है, ये जो पर्व जो है, वो हमको यही बात को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हमको यही सिखा रहा है कि अब बदलने की जरूरत है, हमको छोड़ने की जरूरत है, नया करने की जरूरत है। अगर ये नहीं अगर हम कर सकते तो यीशु मसीह, जैसे हम देखते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, इसलिए खुदा ने अपने को, अपना मुंह जो है वो जो परराष्ट्रीय जो लोग थे उनके तरफ उसने किया। आज अगर हम उनमें से एक है कि हमारे तरफ प्रभु का वचन आ गया, और आज अगर हम उसको नहीं स्वीकारेंगे तो प्रभु हमको छोड़ देगा, और जो उसको स्वीकारेगा उसके पास हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस क्रिसमस के मौके पे हम लोग खुद को जांचेंगे, खुद को परखेंगे, खुद को बदलेंगे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो और सही क्रिसमस हमारे जीवन में हो जाए। तो आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम आके हमारे जीवन को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे और हमको नया जीवन हो दे। हालेलुया लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते आज के इस समय के लिए। प्रभु, जैसे तेरे वचन को हमने सुना है, हम प्रार्थना करते कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने दे, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु तेरी महिमा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा होने दे। प्रभु हमारे सोच को बदल, हमारे विचारों को बदल, प्रभु हमारे जीवन को तो बदल, ताकि प्रभु हम जो भी करें तेरे राज्य के लिए करें। इसलिए प्रभु तो हमको सहायता कर। प्रभु जितने भी लोग ये आज मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन में तेरे आत्मा का कार्य होने दे, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत से लोग प्रभु तेरे राज्य में आए और तेरी महिमा हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल कर ले। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। और प्रभु ने सचमुच में हमारे साथ बात किया है, मेरा पूरा विश्वास है हम इस वचन को ध्यान से हम सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, सोचेंगे और हमारे जीवन को हम परखेंगे। अगर कोई भी गलत बात हमारे जीवन में होगी उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रेज़ द लॉर्ड और शालोम।